All right, thank you so much, Ashik, for all those details on that story. We're shifting focus now. The capital's air quality remained in the very poor category for a third straight day on Monday. The 24-hour average air quality index, or AQI, stood at 316, which is very poor at 8 a.m., which was an improvement from Sunday when it was 366, very poor at 4 p.m., when the Central Pollution Control Board releases its daily national bulletin. The AQI had touched a season peak of 388 at 10 a.m. on Sunday before the situation began to improve as wind speed picked up, touching around 10 kilometers per hour during the day. The centre's air quality early warning system for Delhi in its daily bulletin said that Delhi's air quality is very likely to be in the very poor category from Sunday till Monday. The air quality is very likely to be in the severe category on Tuesday, before once again returning to the very poor category on Wednesday. Long-term data shows that the capital has now entered its most polluted time of the year. A Delhi Pollution Control Committee, or DPCC assessment of CPCB's Air Quality Index, or AQI, for Delhi between 2018 and 2022 had shown the period of November 1st to 15th having the highest AQI annually. This is followed by the period of December 16 to 31st, which has the second highest average over a 15-day period. Joining me live on the broadcast are my colleagues Aditya Vadhavan from Mandi House, Gulshan Grover from Gurugram, Ali Khan from Noida. I want to go across to each one and get the situation off the ground, but first I want to go across to Aditya. Aditya, take us through what the AQI is currently at Mandi House where you are present, and what is the situation on the ground? Well, absolutely, Shivani. Indeed, I'm just standing at the Mandi House, and the air quality index is in the poor category. It is somewhere hovering around between 300 to 400. And, there is a clear, if you can show our viewers, there's a clear smog, a haze, a cover of haze in the air, a slight cloud of smog in the air. Whoever is there, are wearing masks, to prevent. Because the concentration of the PM 2.5 matter has absolutely increased in the Delhi's air, and completely now, it is in the hazardous. There is a likely possibility that the Delhi's air quality can slip into the severe category, and we are experiencing more number of more hospitalizations as people are struggling to breathe. So indeed, we could expect this thing to happen in the days to come, and particularly we are just standing as now we are standing. There is a considerable amount of irritation in eyes and ears due to this pollution, due to the high concentration of PM 2.5 in Delhi's air. We could expect the things to worsen in the times to come, because similarly, every year now this has become a routine, and even during the same time, the farm fires continue in the states of neighboring states of Punjab and Haryana. So indeed, all these things, are making things difficult for Delhi at this juncture, and we could expect also the GRAP 3 measures. If the situation further deteriorates, we could expect the GRAP 3 being also, implied in Delhi. So indeed, there is a lot of, at this juncture, there is a matter of concern, and it needs to be seen, what steps are taken by the authorities, to take stock of the situation. Shivani. All right, Aditya, please do stay on with us. I want to go across now to Ali Khan, who is joining us from Noida. Ali, अर्ली वार्निंग सिस्टम ने हमें कहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी स्थिति खराब ही होने वाली है, तो अभी आप एक तो पहले हमें बताएं कि नोएडा का कैसा हाल है, वहाँ का क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और ये भी बताएं कि और क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों में AQI 170 मॉडरेट कंडीशन तक चला गया था, पर आज फिर वेरी पुअर कैटेगरी में आज का AQI दर्ज किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी ये AQI और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी सुबह का वक्त है, ट्रैफिक का समय शुरू हुआ है, अब और पीक आवर्स में जाएंगे तो ये AQI जो है 350 के आसपास कहीं ना कहीं जाके लाई करेगा। तो ये AQI की एक तो स्थिति है, और मैं आपको बता दूं कि आज एक हमने डेटा फेच करा है जिसमें ESI हॉस्पिटल, जो नोएडा का ESI हॉस्पिटल है, उसमें करीबन 20 तारीख के बाद से करीबन 450 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिन्हें आंख में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
तो लगातार एक हॉस्पिटल की हम बात करें, अगर लगातार हम सभी हॉस्पिटलों की बात करें, तो इस तरह के पेशेंट्स की एक लंबी लाइनें अब लगनी शुरू हो गई हैं, जिन्हें आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना है। जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग के लोगों को हो रही है। वहीं जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स को ऑक्सीजन सपोर्ट तक लेना पड़ रहा है इस हवा के चलते। जी बिल्कुल, absolutely. We are seeing some, residents also reporting of trouble in breathing and respiratory problems. However, now I want to go across to my colleague Gulshan Grover, who is joining us from Gurugram. Gulshan, वहाँ का क्या हाल है? What is the AQI on the ground? आज का क्या AQI index है? और वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ग्राउंड पे लोगों के? देखिए, बिल्कुल इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 जो है इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद वेरी पुअर कंडीशन में इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। गुड़गांव में भी ओपीडी की संख्या जो है वो काफी बढ़ गई है। जिस तरह मेरे सहयोगी बता रहे थे कि एक तो फेफड़ों के मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत के मरीज, आंखों में जलन के मरीज, खराश के मरीज, गले में खराश के मरीज, ये तमाम मरीज जो है इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो अस्पतालों में इस समय डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि यदि आप कहीं बाहर घूम भी रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। N95 जो है मास्क पहनने की सलाह यहाँ डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है, क्योंकि गुड़गांव की हवा इस समय बेहद जहरीली हो चुकी है। इस समय लोग जिस तरह सुबह हम देखते थे कि शुद्ध हवा की सांस लेने के लिए लोग सड़कों पर निकलते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन अक्सर अब वो दृश्य जो है वो नहीं देखा जा रहा है। इस समय लोग जो है इस समय सुबह की सैर करने से बच रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि बच्चे हों या बुजुर्ग हों या जो अस्थमा के पेशेंट हों, जो एलर्जी के पेशेंट हों, वो घरों से बाहर निकलने में गुरेज करें। वो घरों से बाहर कम निकलें, क्योंकि जो इस समय हवा है वो बेहद जहरीली है। इसलिए यदि वो बाहर की सांस लेते हैं, बाहर की हवा लेते हैं, तो इसलिए उनको और ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। बेशक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव ने 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई हो, चाहे उनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नरों की मॉनिटरिंग के लिए लगाया हो, लेकिन धरातल पर इस समय कुछ खासा प्रभाव जो है वो नहीं दिख रहा है। बेशक जो ग्रैप स्टेज 2 लागू है, जिसमें तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उन पाबंदियों पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। खुले में डस्ट इस समय देख रहे हैं, सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ देख रहे हैं, सड़कों पर मिट्टी पड़ी हुई देख रहे हैं। किसी तरह की कोई जो टैंकरों से छिड़काव की बात हो या पेड़ पौधों पर छिड़काव की बात हो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन कम जो है वो नजर आ रहा है। अब बेहद लोगों को खुद जिम्मेदारी अब लेनी होगी। यदि खुद जिम्मेदारी जो समझेंगे तभी एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोका जा सकेगा। 4 मुख्य वजह जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की बताई जा रही है। एक तो जो हाल ही में जो मौसम में जो बदलाव हुआ है, एक ये बड़ी वजह बताई जा रही है। एक जो सड़कों पर जो ट्रैफिक है, इस समय गुड़गांव की सड़कों पर हम देखते हैं कि काफी जो ट्रैफिक है वो एक बड़ी वजह है, और लोग अब पब्लिक वाहन ज्यादा इस्तेमाल करें, प्राइवेट वाहन कम करें, ये जो है ये सलाह जरूर दी गई है। एक निर्माण कार्य जो है धड़ल्ले से जारी है, चाहे वो बड़े बड़े जो बहुमंजिला टावरों की बात करें या फिर आमतौर पर किसी घर के निर्माण कार्य की बात करें, तो ये भी अभी धड़ल्ले से जारी है। ये भी बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है। इसलिए सरकार और प्रशासन की भी अपील है कि आप प्राइवेट वाहन कम इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक जो कम हो सके सड़कों पर, और उससे भी पॉल्यूशन जो है घट सके। बेशक बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम सरकार और प्रशासन जो है वो नियम जो बनाती है, वो लोगों को भी खुद जिम्मेदारी के तहत उनको इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहिए। यदि आप आसपास आपके घरों के बाहर कूड़ा पड़ा है, यदि कोई जला भी रहा है तो उसे रोक लीजिए, यदि उसे कूड़े जलाने से मना कीजिए। इसके अलावा सड़कों पर जो मिट्टी है, आप खुद भी घर के बाहर अपने घर से बाल्टी लेकर के पानी का छिड़काव कर सकते हैं, यदि प्रशासन के द्वारा वहां तक पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। तो लोग अब खुद जिम्मेदारी समझेंगे तो ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को, बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा। नहीं तो इसी तरीके से हम रोजाना की देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पार, 400 पार, 450 पार तक भी हमने गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा, लेकिन अब 350 है, जो वो भी बेहद वेरी पुअर कंडीशन में है। यदि इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, और अस्पतालों में ओपीडी की संख्या जो है वो बेहद इतनी हो जाएगी कि आपको फिर बेड लेने में भी दिक्कत आएगी। बेशक अभी जो गुलशन, I thank all my
colleagues for joining us on the broadcast and providing us live updates from various parts